Good morning to all of you. On behalf of Training and Placement Cell, Guru Jambeshwar University of Science and Technology, Hisar, I welcome you in this fourth edition of live webinar series on life skills. This show is held on every Friday to keep the students motivated and confident. Dear friends, till now we have talked on topics like power of habits, emotional intelligence, mastering LinkedIn, and in this series, today we are going to interact on a very delicate and very important topic, which is the foundation of our personality. And that topic is perspective taking. You have heard that attitude determines altitude. Yatha drishti tatha srishti. And you have also heard नजर बदल दो नजारे बदल जाएंगे सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे. So friends, all these things point to our today's topic, that is perspective taking. It means how we take the perspective, what is our point of view on various issues. So to interact on this important topic, we are having with us Miss Neeru Hasija. So Madam Neeru Hasija, please make your video on. So Miss Neeru Hasija is a motivational speaker, NLP coach, and parenting expert. So I would like to give detailed introduction of Madam Neeru. Madam Neeru she has taken voluntary retirement 12 years prior to her retirement age as senior manager from State Bank of India, and after that she started motivating the people to change their lives. She has been awarded as one of the 50 most influential women in Haryana. She is known for her motivational lectures in school, colleges, universities all across the state to inspire the youth. Friends, her motivational videos in her YouTube channel have transformed many lives. Many organizations have honored her for her selfless services. She is a woman on a mission to bring change in people's lives. She has been awarded Indian Legend Award 2019 and Women Achiever Award 2019. She is known for her lectures on life skills, self-development, self-growth, human relations, and stress management. So, to interact on a very important topic, we are having an important personality like Miss नीरू असीजा जी. आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में. So नीरू जी, we will start with a very personal question regarding your journey from SBI senior branch manager to motivational speaker, NLP trainer, parenting expert. So this is very interesting type of journey. So how it happened? Viewers will like to know about it. Yes, Malik ji, when I was 8 years old, मैं नर्स बनना चाहती थी. Okay. और मैं बॉर्डर पे जो सोल्जर्स हैं उनके वुंड्स को हील करना चाहती थी. लेकिन डेस्टिनी ने मुझे ब्रांच मैनेजर बना दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. और मैंने 23 इयर्स इस बैंकिंग प्रोफेशन को दिया है. लेकिन कई बार लाइफ में एक फेज आता है जो आपकी जिंदगी को पलट देते हैं. मेरा करियर जो था वो बहुत ग्रोइंग फेज में था. लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ऑफिसर्स को हर 3 साल बाद ट्रांसफर होना होता है, तो मेरी पोस्टिंग जो थी वो आउट ऑफ स्टेट हो रही थी विद नेक्स्ट प्रमोशन स्केल 4 की. तो मेरे जो घर के सर्कमस्टांसेस हैं उस वक्त मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे. और कुछ फैमिली डिसीजंस ऐसे हुए कि मुझे वीआरएस लेना पड़ा. लेकिन आज दिल की बात इस प्लेटफॉर्म पे मैं बताना चाहती हूँ, एट दैट टाइम आई वाज नॉट रेडी फॉर इट. क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी जो इमेज है वो एक बहुत ग्रोइंग लेडी की है और मैं अपने आप को एक हाउसवाइफ की पिक्चर के अंदर फिट नहीं बिठा पा रही थी. तो धीरे धीरे मैं एक डिप्रेसिव मोड में आ गई. और ये जो डिप्रेशन है इससे क्या हुआ, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब एक आदमी डिप्रेशन में होता है या नेगेटिविटी में होता है तो वो दूसरों को ब्लेम करने लग जाता है. उसको ऐसे लगता है कि लाइफ में कुछ बदलेगा ही नहीं, उसके लिए हर चीज उसके लिए बदल जाएगी. वो भगवान को ब्लेम करता है, अपने रिश्तेदारों को ब्लेम करने लग जाता है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी ब्लेम करने लग जाता है. ऐसा ही मेरे साथ हुआ. लेकिन एक बार मैंने एक कोट सुना था टोनी रॉबिन्स का, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी. उसमें ये था कि जो क्वालिटी ऑफ योर लाइफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड यू. यानी आप अपने आप से कैसी बातें करते हैं, आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो उसके ऊपर ही डिपेंड करती है.
तो मैंने भी कहा कि अरे यार उठना ही चाहिए अब तो, कब तक आप दूसरों को ब्लेम करते रहोगे। तो मैंने अपने आप को सेल्फ ग्रोथ की तरफ मोड़ा, सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ मोड़ा। मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, लिटरेचर पढ़ा। घर में भी जब मैं डोमेस्टिक वर्क कर रही होती थी तो हेडफोन्स होते थे और मैं कोई ना कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुनती थी। धीरे धीरे मैंने अपने समाज में कुछ ऐसे लोगों को देखा जो मेरे टाइप के जोन में थी, तो मैंने उनको हेल्प करना स्टार्ट किया। तो दे वर वेरी हैप्पी, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ। फिर मैंने स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स देने स्टार्ट किए। तो ये जो मेरी जर्नी है वो धीरे धीरे स्टार्ट हुई। जैसे कि आपने बताया कि मुझे डिफरेंट अवार्ड्स टाइम टू टाइम मुझे मिले, लेकिन मैं कंक्लूजन में मुझे ये चीज समझ आई कि वी आर नॉट हैप्पी व्हेन वी गेट समथिंग, वी आर हैप्पी व्हेन वी बिकम समथिंग। तो कुछ बनना ही बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि समाज में हमेशा हमें रिकॉग्निशन के पीछे भी भागना है। जिंदगी में शिफ्ट तब आता है जब आप ग्रोथ की तरफ और कंट्रीब्यूशन की तरफ लाइफ को मोड़ते हो। तो ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, मलिक जी। ठीक। So Neeru ji, from your this journey, students can learn a lot of things. How you can transform your life. This is very important idea which you have given. तो अभी हम आज के टॉपिक पे आते हैं नीरू जी. Our today's topic is taking perspective. So in layman language और in very simplistic manner हम इस perspective को कैसे define कर सकते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए. What do you mean by perspective? जी, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में हम लोगों को, व्यक्तियों को या हमारे आसपास की वस्तुओं को कैसे देखते हैं। हाउ डू वी सी द थिंग्स, पीपल एंड सिचुएशंस इन आवर लाइफ, दैट इज कॉल्ड आवर पर्सपेक्टिव। और इस दुनिया में दो व्यक्तियों का एक ही घटना को देखने का जो पर्सपेक्टिव होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे कि एक बर्तन है जो बिल्कुल साफ नहीं है, और अगर आप उसी बर्तन में जो कि साफ नहीं है अलग अलग डिशेस को परोसना शुरू कर दो, तो जो भी डिश आप खाएंगे उसके अंदर उस बर्तन का फ्लेवर आएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल पर्सपेक्टिव के साथ होता है। अगर मेरा पर्सपेक्टिव दुनिया में अपनी लाइफ को लेकर बहुत गलत है, नेगेटिव है, तो मैं जिस भी काम में हाथ डालूंगी उसमें मुझे वो नेगेटिविटी की झलक आनी स्टार्ट हो जाएगी। और वाइस वर्सा होता है। इफ आई एम वेरी पॉजिटिव एंड आई हैव अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जिंदगी को लेकर, तो मैं कुछ भी करूं उसके अंदर वो फ्लेवर जो है वो जरूर आएगा। और पर्सपेक्टिव को लेकर हम सब बच्चों को ये बात बहुत जरूरी है समझने के लिए कि इवेंट्स का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, हम उसको मीनिंग देते हैं। लाइफ में घटना का कोई मीनिंग नहीं होता, वी गिव मीनिंग टू दैट इवेंट। और जैसा हम मीनिंग देते हैं उस घटना को लेकर, बिल्कुल वैसे ही हमारे अंदर फीलिंग्स जनरेट होने लग जाती हैं। फीलिंग से फिर हमारे इमोशंस क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। वैसे ही हम एक्शंस लेने को मजबूर हो जाते हैं, वैसा ही हमारा बिहेवियर बनता है, वैसे हम जिंदगी के अंदर डिसीजंस लेते हैं और वो हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करता है। तो कितनी वंडरफुल बात है ना कि कोई भी घटना जिसका कोई अपना मीनिंग ही नहीं है, हम उसको मीनिंग देते हैं और वो मीनिंग जो है वो हमारे डेस्टिनेशन की तरफ हमें लेकर जाता है। इट इज अ वेरी वंडरफुल थिंग। Yeah, so rightly said, नीरू जी. जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि इफ ग्लास इज हाफ फिल्ड, तो उसको देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं. वन कैन से कि ग्लास इज हाफ एम्प्टी, another can say glass is half filled, and third person can say कि glass is fully filled, half with water and half with air. So this is all about perspective. नीरू जी, एक चीज और है कि जब हम कहते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव पर्सपेक्टिव, तो कई बार स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन राइज होता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव ये भी सब्जेक्टिव टर्म्स हैं. किस पर्सपेक्टिव को हम पॉजिटिव कह सकते हैं, किसको नेगेटिव कह सकते हैं? क्योंकि एक पर्सपेक्टिव किसी का पॉजिटिव है, उसी को दूसरा नेगेटिव भी मान लेता है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सपेक्टिव को हम कैसे थोड़ा आसानी से समझा सकते हैं? जी, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी समझाना चाहूंगी कि जो एक पर्सपेक्टिव है वो बनता कैसे। उसके बाद हम इस चीज को आगे लेकर जाएंगे। जब एक बच्चा छोटा होता है, 1 से लेकर 7 साल तक होता है, तो उसका जो लॉजिकल माइंड होता है वो ज्यादा डेवलप नहीं होता। और उस वक्त जो कुछ भी उसे अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा और अपने फैमिली मेंबर्स के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा जो कुछ भी उसको बताया जा रहा होता है, वो ऐसा उस इंफॉर्मेशन को ले रहा होता है
और अपनी एक धारणा बना रहा होता है, अपना एक सेल्फ कंसेप्ट बना रहा होता है, और कहीं ना कहीं उसका उस टाइम पे एक पर्सपेक्टिव बन रहा होता है, उसको देखने का जो उसका जो नजरिया है वो चेंज हो रहा होता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब उसका पर्सपेक्टिव बन जाता है तो वो अपने आसपास के लोगों को उसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से अफेक्ट करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको ऐसे समझाती हूँ, उसके बाद मैं मलिक जी आपके क्वेश्चन की तरफ जाऊंगी। ठीक है। अगर मेरे पेरेंट्स के द्वारा मुझे ये फीड कर दिया गया कि ये जो दुनिया है ये बिल्कुल बेईमान है या बिल्कुल नेगेटिव है, तो उससे क्या होगा कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने का वो बहुत नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद अगर मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव भी होएगा तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है जो 90% ज्यादा पावरफुल है हमारे कॉन्शियस माइंड से, वो उस अच्छी चीजों को सरपास कर देगा या ब्लर कर देगा, इतना धुंधला कर देगा कि मैं इस दुनिया की ब्यूटी को, इसकी पॉजिटिविटी को देख ही नहीं पाऊं। और अगर कुछ भी नेगेटिव इंसिडेंसेस आते हैं तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसको जूम करके मुझे दिखाएगा और मैं कहूंगी कि देखा, मैंने कहा था ना कि दुनिया इतनी नेगेटिव है। और एग्जैक्टली इसके साथ उल्टा होता है। अगर मेरे पेरेंट्स के द्वारा मुझे ये पर्सपेक्टिव दिया गया है कि दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत ईमानदार लोग हैं, तो अगर मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव सिचुएशंस भी आएंगी ना, तो वो नेगेटिव सिचुएशंस मेरा माइंड ब्लर कर देगा। और कुछ भी मेरे साथ अच्छा होता है तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको जूम करके कहेगा कि अरे वाह, मैंने कहा था ना कि दुनिया बहुत अच्छी है। और जहां तक पर्सपेक्टिव का सवाल है, देखो ये चीज हमें खुद हमारी लाइफ से समझ आती है कि हमारा जिंदगी को लेकर नजरिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि मान लो कि मेरा पर्स है, पर्स अगर मुझे चुभ रहा है तो मैं पर्स से भी पैसे निकाल के उसको ऐसे करके फेंक दूंगी कि पर्स मुझे नहीं चाहिए, जेब में मुझे चुभता है। Yes. तो आप देखो कि आपके जो आइडियाज हैं, आपके जो थॉट्स हैं, कहीं आपको चुभ तो नहीं रहे हैं। सी द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, सी द क्वालिटी ऑफ द पीपल जिनके साथ आप सराउंडेड हैं। आपके जो लोग हैं वो आपको बताएंगे। आपके जो रिजल्ट्स लाइफ में आ रहे हैं उनको लेकर आप खुश नहीं हो, आप पूरी दुनिया को ब्लेम कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी खुश नहीं हो। इसका मतलब आपको देखने का जो दुनिया को नजरिया है वो गलत है। तो सी योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, आपको समझ आ जाएगी कि अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, अंदर से आप उदास हैं, अगर आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं है, एक होलोनेस है, इट मींस आपका जो दुनिया को देखने का नजरिया है वो नेगेटिव है। ठीक है। सो नीरू जी, यू हैव राइटली सेड दैट अपब्रिंगिंग आल्सो मैटर्स, किस परिवेश में हम बड़े होते हैं इसका भी एक महत्व है। सो एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि नेगेटिव पर्सपेक्टिव जो है वो हमारी परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है। नेगेटिव पर्सपेक्टिव अगर किसी का है तो हाउ डज इट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। बिल्कुल, मैं नेगेटिव पर्सपेक्टिव को स्टूडेंट्स की एजुकेशन के साथ या एक खिलाड़ी की खेल के अंदर परफॉर्मेंस से रिलेट करके बता देती हूँ, ताकि आप को रिलेट कर पाएंगे, फिर आप जिंदगी की किसी भी सिचुएशन के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि खिलाड़ी है और वो प्लेग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेलने के लिए गया है और उसका ये पर्सपेक्टिव है कि मैं तो जीत ही नहीं सकता। तो बच्चों आप बताओ कि अगर ऑलरेडी उसका ये पर्सपेक्टिव बन चुका है कि मैं जीत नहीं सकता, तो क्या वो अपने उस खेल के अंदर 100% एफर्ट्स देगा? और अगर 100% एफर्ट्स देगा ही नहीं तो उसको वो रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? अब इतना कंपटीशन हाई है, आपको फोकस रखना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं उस कंपटीशन के साथ, उस रेस में जाने के लिए। और अगर आपका पर्सपेक्टिव ही गलत है तो पहले स्टेप पे ही आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि यू आर नॉट पुटिंग यूर 100% इन दैट, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ होने वाला तो है ही नहीं। तो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, काम को स्टार्ट करने से पहले ही आप पीछे हो जाएंगे, उसका श्री गणेश ही आप अपने गलत थॉट्स के साथ करेंगे, तो उसके लिए आप कैसे एक पॉजिटिव रिजल्ट्स पा सकते हैं? अगर मेरा माइंडसेट नेगेटिव है ना मलिक जी, तो मुझे बाहर सारी सिचुएशंस गलत ही दिखती हैं। और ये दुनिया में माइंडसेट का एक बहुत बड़ा रोल है। 80% माइंडसेट होता है और 20% रिसोर्सेज होते हैं। अगर मेरा 80% माइंड ठीक है, मेरी मेंटल पिक्चर बिल्कुल ठीक है अपने लिए, तो उस केस के अंदर 20% जो रिसोर्सेज हैं वो मैं ऑटोमेटिकली जुटा लूंगा और वो ऑलरेडी मेरे आसपास ही होते हैं, वो दूर नहीं होते हैं कहीं पे भी। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
स्टूडेंट्स को मैं एक चीज बहुत जरूरी बताना चाहती हूँ कि हमने अपने लिए यहाँ पे आइडेंटिटी क्रिएट करके रखी है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, व्हाट्सएवर। आपने एक मेंटल पिक्चर जो बनाई हुई है उसको बना रहने दे। लाइफ कंडीशंस प्लस या माइनस होती रहेंगी। आज बहुत अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट है, अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, आई नो दैट। लेकिन अगर आप इस लाइफ कंडीशंस के हिसाब से अपनी मेंटल पिक्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो जिंदगी भर आप ब्लेम मोड में रहेंगे, जैसे कि मैं रहती। और अगर आप लाइफ कंडीशंस को अप कर लेंगे, अपने पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव बनाकर, अपनी नेगेटिविटी को हटाकर पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव बनाकर आप लाइफ कंडीशंस को अपने अनुकूल बना पाएंगे, तो जो सपना आपने अपने मन के अंदर सजो के रखा है डेफिनेटली आप उसको पूरा कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमने लाइफ कंडीशंस के साथ अपनी मेंटल पिक्चर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो सपना मैंने देखा है अपने लिए उसको जीवंत ही रखना है, उसको जिंदा ही रखना है। लेकिन भले ही सिचुएशंस ऊपर नीचे हो जाती हैं, I have to take an action. I have to make the strategies to bring those life conditions up. Okay. So 80% mindset and 20% resources. This is very beautiful formula which we can learn from you. तो आपके डिस्कशन से आई थिंक स्टूडेंट्स ने ये समझ लिया होगा कि अगर हमारा नेगेटिव पर्सपेक्टिव है तो हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाता है, वी आर ऑलवेज इन डिस्करेज्ड पोजीशन, सो इट डायरेक्टली worsens the performance of an individual. So Neeru ji, I will take next question. जैसे आपने कहा कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो बचपन में ही बन जाता है, या ये कह लीजिए कि जैसे जैसे हमारा परिवेश में हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारा पर्सपेक्टिव बनता है, और आई कैन से कि पकता भी है। तो जब हमारा पर्सपेक्टिव इतना पक्का हो गया, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, सो ये हम ये कैसे मान लें कि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज भी हो सकता है? हाउ कैन वी चेंज आवर नेगेटिव पर्सपेक्टिव इनटू पॉजिटिव? इज इट पॉसिबल, एंड इफ यस देन हाउ? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये एक लर्न बिहेवियर है। ये एक ऐसा लर्न बिहेवियर है जो ग्रेजुअली हमने समय के साथ साथ अपने अंदर डाला है और उसको फिर एक्शन मोड में ले आए, और धीरे धीरे हमारा एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव, जिंदगी को देखने का एक नेगेटिव नजरिया बन गया है। लेकिन इसको डेफिनेटली हम लोग चेंज कर सकते हैं, और इसको चेंज करने का सबसे बड़ा उपाय तो ये है कि सबसे पहले आप ये देखिए, सी कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप अपने कमरे की एक फोटो चेक करो, फोटो खींचो और देखो, आपको अपने कमरे के शक्ल से आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का लेवल समझ आ जाएगा। आप अपने 5 फ्रेंड्स को देखो, उनके हैबिट्स को देखो, तो आपको अपनी हैबिट्स के बारे में समझ आ जाएगा। सी द 5 पीपल इन योर फैमिली, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो आपको क्या फीडबैक देते हैं। उसके बाद आप अपने पर्सपेक्टिव पे काम करते हैं। सबसे बड़ी जरूरी ये है कि आप अपने चारों तरफ पॉजिटिव लोगों को रखें। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे बच्चों के आते हैं जो कहते हैं कि वी आर सराउंडेड बाय द नेगेटिव पीपल, फिर हमारा पर्सपेक्टिव पॉजिटिव कैसे हो सकता है? तो कोशिश कीजिए कि आप अपने चारों तरफ उन लोगों को रखें जिनका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, और अगर आप फिजिकल डिस्टेंस उनसे मेंटेन नहीं भी कर सकते हैं, उसके बावजूद आप एक मेंटल डिस्टेंस उनके साथ बना के रखें। दूसरी बात, अगर कोई आपकी सेल्फ इमेज को हर्ट करता है या आपके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट्स करता है, तो धीरे से आप मन ही मन बोल सकते हैं कि दिस इज योर पर्सपेक्टिव, ये तुम्हारा नजरिया मुझे देखने का, मैं नहीं हूँ। यानी आपने अपने आप को नेगेटिव कमेंट्स नहीं देने हैं। और मलिक जी, इसमें ना बुक्स का बड़ा रोल होता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छी किताबें पढ़ी जो सेल्फ डेवलपमेंट की और सेल्फ ग्रोथ की किताबें थी, और उनसे जो है मेरी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो बड़ा होता है। यू हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, यानी आपका जो प्लेटफॉर्म होता है वो बड़ा हो जाता है दुनिया को देखने का। इसके अलावा यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं ना, तो उसके बाद आप ब्लेम मोड से हटते हैं, क्योंकि खाली बैठे कमरे के अंदर तो किसी को भी क्रिटिसाइज किया जा सकता है। लेकिन जब आप एक्चुअल में एक्शंस लेते हैं और सक्सेस की तरफ जाते हैं, तो आपको रियल मायने में पता चलता है कि ये जर्नी कितनी मुश्किल है,
और उस वक्त जो है आपको ये चीज भी समझ आ जाती है कि बिना एक्शंस लिए, बिना मेहनत करे जो है वो जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। तो दूसरी, एक तो बुक्स के बारे में मैंने बताया, एक ट्रैवल कीजिए आप। जितना ज्यादा आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, जगह जगह पे जाते हैं, वहां पे अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो आपका जो सोचने का जो अंदाज है वो बढ़ता है। पुराने जमाने में तो गुरुकुल में हम लोग बच्चे जो थे वो एक समझ डेवलप करते थे ना मलिक जी, अब वो थोड़ा सा एक एरिया कम हो गया है। पहले जो थे वो बड़े बुजुर्गों के साथ गांवों में चौपालों पे बैठा जाता था, जो एक लेजर टाइम होता था। हम लोग जिंदगी के अनुभवों को शेयर करते थे, उससे बड़ी अच्छी लर्निंग होती थी, उससे हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता था। और एक चीज जो है ये कि हम लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो मेरी लाइफ में जो बेसिक चेंज आया वो किताबों से और मेडिटेशन से आया, पर्सपेक्टिव चेंज होने में। तो जैसे नीरू जी आपने बताया बुक रीडिंग के बारे में, तो आई थिंक हमने अभी तक 3 सेशंस किए हैं, तो तीनों स्पीकर्स ने ये कॉमन बात बताई है कि रीडिंग गुड बुक्स, दिस इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ डेवलपिंग और कल्टिवेटिंग द पॉजिटिव थिंग्स। तो कुछ बुक्स आप सजेस्ट भी कर सकती हैं, कुछ इफ यू रिमेंबर सम गुड बुक्स विच स्टूडेंट्स बिल्कुल कैन रीड। बिल्कुल, डेफिनेटली। स्टूडेंट्स को इस मंच के माध्यम से पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो एक किताब होती है, उसमें जो राइटर होता है वो अपने 3 या 4 साल का अनुभव लगाता है उस 300 या 400 पेजों की किताब को लिखने में। और वो 5 साल का अनुभव जो है वो 300 पेजों में आपको, जो 5 साल की मेहनत है वो आपको उस बुक के रूप में गिफ्ट मिलती है, जो आपको वो अनुभव देता है। तो बुक्स बहुत जरूरी है। आज हम लोग बर्गर पे पैसा खर्च कर देते हैं, आज हम लोग बाकी कपड़ों पे पैसा खर्च कर देते हैं, पता नहीं क्यों हम किताबों के ऊपर पैसा खर्च क्यों नहीं करते हैं, क्यों हमें 100-200 रुपए की किताब खरीदने में इतनी प्रॉब्लम आती है। तो मेक इट अ वेरी गुड हैबिट कि किताबें पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। यहाँ पे मैं 2 किताबों का जिक्र करूंगी और उसके अंदर उसका क्रक्स बताऊंगी कि उन किताबों में क्या है। एक तो किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कुवे। और जो ये किताब है, 1.5 करोड़ से ज्यादा कापियां इस किताब की पब्लिश हो चुकी हैं और 45 लैंग्वेजेस के अंदर इसका अनुवाद हो गया है। इस किताब के अंदर राइटर ने बोला है कि अ, दुनिया के जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको अपनी जिंदगी के इनिशियल ईयर्स में ये समझ आ जाता है कि हमारा एरिया ऑफ कंसर्न क्या है। फिर वो छोटी छोटी बातों में एंटेंगल नहीं होते, उनको समझ आ जाता है कि ये प्रॉब्लम मेरी है एंड आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। और वो जो बड़ी सोच के मुसाफिर होते हैं वो छोटी छोटी चीजों में अटकते नहीं है। जैसे कि आपको एक फ्लाइट लेनी है और रास्ते में आपकी छोटी सी गाड़ी भिड़ गई, तो आप वहां पे अटकेंगे नहीं क्योंकि फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तो इसमें 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जो बुक है, इसमें राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि जब आपका मकसद बड़ा होता है, जब आपका पैशन बहुत बड़ा है, आपका विजन बहुत बड़ा है, तो फिर आपके पास टाइम ही नहीं होता नेगेटिविटी के लिए या छोटी छोटी चीजों के अंदर घुसने का। और दूसरी जो बात थी, जो दूसरी बुक है वो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, डेरिन हार्डी की। जब मैंने वो बुक पहले देखी तो मुझे लगा कि कोई अकाउंटिंग की किताब है, मैथमेटिक्स की किताब है, लेकिन ये भी एक सेल्फ डेवलपमेंट की बुक है, जिसके अंदर राइटर ने बताया है स्मॉल 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 एक्शंस जो है वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं। एक ईंट जब आप रोज रखते हो तो एक दिन बहुत बड़ी इमारत बन जाती है। आज अगर मैंने अपने आप को 10 पे रखा है, आई हैव टू रेज माई स्टैंडर्ड, कल मैं 11 पे होनी चाहिए, फिर ये मेरी बेस लाइन बन जाएगी, फिर मैं 12 पे होनी चाहिए, फिर वो मेरी बेस लाइन बन जाएगी, फिर मैं 13 पे होनी चाहिए। इस तरह से डेली छोटे छोटे एक्शंस जब हम लोग लेते हैं तो हम एक बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ जाते हैं। अब आप ये देखो, किसी आदमी को हार्ट अटैक आ गया है तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स उसने बर्गर खा के या ऑयली फूड खा के कई सालों दी है। और इसी तरीके से जब आप एक कील को दीवार पे ठोकते हैं तो 99 टाइम्स वो कील जो है वो अंदर नहीं गया, लेकिन 100वीं बार वो कील जो है वो दीवार में ठुक गया, लेकिन उसमें वो 99 जो प्रहार किए गए हैमर के द्वारा उसका भी उतना ही रोल है। तो यही चीज बच्चों, ये हमारी सक्सेस के साथ भी होती है। वन बाय वन जो स्टेप बाय स्टेप हमारी जो ग्रोथ होती है वो एक बहुत बड़े हमारे मकसद को पूरा करने में हेल्प करती है। तो दीज आर 2 बुक्स। और एक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल है, जिसमें हमें सोचना कैसे है उसके ऊपर है। तो बहुत सारी किताबें हैं, वो आप अपनी चॉइस के साथ चूज कर सकते हैं और उससे डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है। नीरू जी, some students have also asked questions. एक स्टूडेंट
Ankit Verma from BTech Printing. This student has asked the question that how can we be positive in a negative situation, and if we are failed in something, then how can we bring positivity in our mind to achieve it again. यानी अगर हमें फेलियर मिलता है तो स्वाभाविक है कि हम नेगेटिव हो जाएंगे. तो कोई फेलियर अगर हमें मिलता है तो उस केस में हाउ वी कैन इवन देन मेक आवर पर्सपेक्टिव और कीप आवर पर्सपेक्टिव पॉजिटिव, एंड असफलता मिलने के बाद भी हमारा नजरिया पॉजिटिव कैसे रहे. जी अंकित जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको क्या लगता है कि दुनिया में जो इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी कोई झोली के अंदर कोई जीनी ने आकर सक्सेस डाली थी? उन्होंने भी बहुत सारे फेलियर्स जो थे अपनी लाइफ में दिखे. तो अंकित बच्चे, ये चीज आप ध्यान में रख लेना कि अगर कोई भी फेलियर है, वो फेलियर नहीं है, वो एक फीडबैक है. उसको फीडबैक सोचो, उसको फीडबैक समझो, क्योंकि वो आपको आपकी कमियों के बारे में बताता है. और इसी तरीके से थॉमस एडिसन है, उसको कितनी बार प्रॉब्लम हुई तब जाके वो बल्ब बना सका. तो आपको क्या लगता है कि दुनिया के अंदर जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनको फेलियर्स नहीं मिली होंगी? तो फेलियर्स को आप फेलियर मत समझें, उसको लेकर आप नेगेटिविटी मत लें. उस फेलियर से आप लर्निंग लें. उस फेलियर से आपने ये देखना है कि मेरे में क्या कमी रह गई और मैं उसको आगे कैसे लेकर आ सकता हूँ. और जैसे कि मैंने आज का सेशन स्टार्ट किया था कि इवेंट्स हैव नो मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू दैट इवेंट. तो आप अपनी फेलियर को क्या मीनिंग देते हैं अंकित जी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो आई एम श्योर कि आप इस नेगेटिविटी से बहुत जल्दी बाहर आएंगे. जितनी भी सक्सेसफुल पर्सनालिटीज हैं, उन्होंने पहले अच्छे से फेलियर का मजा चखा है, उसके बाद वो सक्सेसफुल बने. Yes. So in our one session, our speaker told that attempts get failed, not the person. हमारे attempts fail हो सकते हैं, इंसान fail नहीं होता. तो this is what Neeru has also told. नीरू जी, बी फार्मा से शाइना एक स्टूडेंट है, उनका एक सवाल है कि हम लोगों के पर्सपेक्टिव को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे किसी को हमारे बारे में नेगेटिव सोचने से रोक सकते हैं. नाम क्या है मलिक जी इसका? शाइना. 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 शाइना, जिंदगी ना बहुत छोटी सी है. हमें स्वयं को बदलना है, हमें दूसरों को नहीं बदलना. दुनिया में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, लोगों के पर्सपेक्टिव हमें देखकर बदलते चले जाएंगे. कुछ लोग हमें पीछे धकेलेंगे, बहुत कम लोग होंगे जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे. तो लोगों के पर्सपेक्टिव की चिंता नहीं करनी है, आपको स्वयं को बदलने की कोशिश करनी है. आप ये देखिए कि जीवन बहुत छोटा सा है, मुझे अपने अंदर क्या पॉजिटिविटी लानी है, या मैंने अपनी जिंदगी को लेकर जो लक्ष्य बनाया हुआ है, जो मैंने आउटकम बनाया हुआ है, मैं उसकी तरफ कैसे बढ़ूं. और इस तरह से तो प्रॉब्लम्स आएंगी. लोगों की नेगेटिविटी से आपने बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना है. अगर आप अफेक्ट होने शुरू हो गए तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है. शाइना, जैसे कि आप रेस ग्राउंड में देखें, बहुत सारे जो एथलीट्स हैं वो दौड़ रहे हैं, और अगर एक दौड़ने वाला अपने साथ वाले की प्रोग्रेस को देखने लग जाता है, उसकी परफॉर्मेंस पे फोकस कर देता है, तो कहीं ना कहीं वो खुद पीछे रह जाता है. तो अगर रियल मायने में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको लोगों के पर्सपेक्टिव की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. यू आर राइट ऑन योर पार्ट, यू लव योर सेल्फ, यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, और इसी चीज के साथ आप आगे बढ़ते चले जाओ. सो नीरू जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यू हैव रिप्लाइड टू दिस क्वेश्चन. पूनम शर्मा फ्रॉम MSc मैथमेटिक्स, शी हैज आल्सो आस्क्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि व्हाई वी गेट नेगेटिव सो सून एंड हाउ वी गेट अफेक्टेड सो इजीली बाय नेगेटिविटी. यानी उनका क्या है, पूछने का प्रश्न का भाव ये है कि नेगेटिविटी इतनी मजबूत क्यों होती है, क्यों नेगेटिविटी हम पर ज्यादा हावी होती है एज कंपेयर टू पॉजिटिविटी. हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, क्योंकि मैं NLP कोच भी हूँ, तो ह्यूमन माइंड जो है वो नेगेटिवली ही ट्रेंड है. हमारा नेगेटिव चीजों को लेने के लिए वो ऑलरेडी वायर्ड ही है. और फिर हमारा जो माइंड है, उसके अलावा वातावरण जो है वो हमें और नेगेटिव कर देता है. गेंद हमेशा नीचे जाती है, लेकिन जब हमें उसको ऊपर करना होता है तो वी हैव टू मेक एन एफर्ट. हिली एरियाज में कोई भी चीज जब हम नीचे की तरफ अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं स्लोप पे, तो हमारी गाड़ी बहुत जल्दी चली जाती है. लेकिन जब हमें ऊपर लेके जाना पड़ता है तो हमें डबल इंजन लगाना पड़ता है. तो हमें एफर्ट नेगेटिव करने में तो करना ही नहीं है. अंधेरा लाने में क्या एफर्ट करना है, जोत जलाने में ही तो एफर्ट करना पड़ता है ना. तो नेगेटिव तो हम लोग ऑलरेडी होते चले जाएंगे. अपनी जेब में से पैसे निकाल के खर्च करना इज वेरी इजी, लेकिन उसको जुटाना इज
वेरी टफ। तो ये है ही, आवर ह्यूमन माइंड इज ऑलरेडी वायर्ड टू टेक नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव रखने के लिए हमें डेफिनेटली एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उसके लिए स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है। और एक बार जब ये चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं, एक हैबिट बन जाती है, पॉजिटिव सोचना हमारी आदत में शुमार हो जाता है, लोगों को शेयर करना, गुड थिंग्स करना हमारी आदत बन जाता है, तो उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें हमारे साथ होने लग जाती हैं, और फिर हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता। एफर्ट हमें तब तक करना पड़ता है जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव बन रहे होते हैं, बट वंस वी बिकम द एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट पॉजिटिविटी, उसके बाद मुझे कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो वी कैन से कि नेगेटिविटी इज नेचुरल। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो नेगेटिविटी विल डेवलप इन आवर पर्सनैलिटी, और थोड़ा सा हम एफर्ट करेंगे तो वी कैन बी पॉजिटिव एंड देन वी कैन स्टे पॉजिटिव। बीटेक ईसी से आलोक कुमार ने क्वेश्चन पूछा है कि इस तरह की टॉक से वी गेट मोटिवेटेड एंड वी टेक द प्लेज दैट ओके आवर पर्सपेक्टिव विल नाउ बी पॉजिटिव, नाउ ऑनवर्ड वी विल बी पॉजिटिव, बट हाउ टू मेंटेन दिस पॉजिटिविटी। एक दो दिन के बाद ही, 2-3 दिन के बाद ही बाकी चीजें फिर हावी होने लगती है, और जो भी हमने एक प्लेज ली है, हमने एक डिटर्मिनेशन लिया है, दैट स्टार्ट्स ब्रेकिंग। So how we can take care of it? क्या नाम है इसका? आलोक कुमार। आलोक स्वीटी, एक बात को अंडरस्टैंड करो, आप रोज ब्रश करते हो क्या? और आप रोज ही नहाते होंगे, और तीनों टाइम आप खाना खाते हैं। जिस तरह से आपने इन चीजों को अपनी पार्ट ऑफ हैबिट बनाया हुआ है, ऐसे ही आप डिपेंडेंट मत रहिए कि कोई एक पर्सन आएगा, आपको एक घंटे का मोटिवेशनल लेक्चर देगा और आप मोटिवेट हो जाएंगे, और वो मोटिवेशन आपको जिंदगी भर ड्राइव करेगी। इट इज अ जर्नी, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन। हमें हर रोज अपने आप को मोटिवेट करना है। और आलोक, एक चीज मैं बता देती हूँ, अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, अगर आपका पैशन बहुत बड़ा है, तो आपका जो पैशन है वही आपको आगे मोटिवेटेड करेगा। अगर हम मोटिवेटेड नहीं है, अगर हम नेगेटिविटी में जा रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा सपना बहुत छोटा है, मैंने जो है अपना लक्ष्य ही बड़ा नहीं बनाया। क्योंकि अगर लक्ष्य मेरा बड़ा है तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं होगा, और डे बाय डे अगर मैं ईमानदारी से उस लक्ष्य की तरफ एक्शंस कर रही हूँ, तो रियल मायने में मेरे पास टाइम नहीं होने वाला है, मैं उस लक्ष्य की तरफ जाने ही वाली हूँ। और अगर उस लक्ष्य की तरफ जाते हुए भी मुझे कुछ फेलियर्स आती हैं, तो मैं ईमानदारी से उसको फीडबैक्स को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करूंगी, फ्लेक्सिबिलिटी लाऊंगी लाइफ में, और अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेकर आऊंगी, और फिर आगे बढ़ूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी माइंड की पिक्चर के ऊपर काम करना है, मैंने अपना जो जिंदगी का जो यहाँ पे मैप बना के रखा है ना, उसके ऊपर काम करना है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, डेली आपको मोटिवेट करना है। तो कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस आप लीजिए, 13 या 14 अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस आप लीजिए मॉर्निंग में, इवनिंग में, सोते वक्त, सोने से पहले और सुबह उठते ही, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, उस वक्त आप उसको इंटीग्रेट करें, ताकि वो आपकी आइडेंटिटी बन जाए, और धीरे धीरे आप जो है वो पॉजिटिव रहने लग जाएंगे। अभी मलिक जी, मुझे लड़की मिली थी जो बहुत काली थी, बहुत ही काली। तो उसको किसी लड़के ने रिजेक्ट कर दिया, अभी मैट्रिमोनियल उसका प्रपोजल आया, तो वो बहुत डिप्रेस थी, मतलब ऐसा हो रहा था कि जैसे वो सुसाइड ही कर ली। लेकिन केवल उसने क्या किया कि उसने अपने आप को विद कन्विक्शन, विद फीलिंग्स, मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको रटी रटाई भाषा बोलो, विद कन्विक्शन, स्वीकार करके उसने सुबह शाम इसका प्रैक्टिस किया कि आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। धीरे 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 आपका वो सेल्फ बिलीफ, यानी सबसे बड़ी बात है कि आपका अपने ऊपर कितना विश्वास है, और वो इतना विश्वास कायम हो गया कि आज वो कह रही है कि आई एम द ब्यूटीफुल पर्सन। और मैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है कैटरिंग का इस कोविड-19 के अंदर। तो कहाँ वो सुसाइड कर रही थी और कहाँ वो अपना बिजनेस कैटरिंग का स्टार्ट कर रही है। वो शिफ्ट कैसे आया कि उसने एक्शन लिया, उसने अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दी, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर काम किया। और मलिक जी देखो, अगर मुझे दिल्ली जाना है और आज से 20 साल पुराना मैं मैप लेकर चली जाऊंगी, तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, सब कुछ चेंज हो गया है, सब गलियां सब कुछ चेंज हो गया है। तो मुझे अपग्रेडेड मैप लेके ही जाना पड़ेगा ना दिल्ली में खोजने के लिए। और उसी तरीके से आज के पर्सपेक्टिव में मुझे अपने मेंटल मैप को भी तो अपग्रेड करना है ना। दुनिया की तो नेगेटिविटी आ ही रही है, तो मेरे को बार बार उसको डीक्लटर करना है, मुझे वो गंद को बाहर निकालना है, पॉजिटिव चीजों के लिए स्पेस रखनी है, तभी तो मैं पॉजिटिव बन पाऊंगी। बिल्कुल।
So Niruji, a number of students have already sent the questions to us, like Nikhil Yadav, Kashish, Rajat Jangda from MBA, Jitendra, Monica Sihak from BSc Chemistry, Monica from MSc Maths, Hina Tarani from MCOM, Diksha Sivaj, Sumit, Sahil from CSC, Manisha Saini, Monica. So all these students have basically asked the question that how we should convert our negativity into positivity. This you have already answered. आपने अपने अभी टॉक में एक जिक्र किया दैट यू आर NLP कोच एंड आई हैव आल्सो मेंशन्ड दिस इन योर इंट्रोडक्शन. तो थोड़ा स्टूडेंट्स का एक एंजाइटी हो सकती है कि व्हाट इज दिस NLP एंड हाउ NLP हेल्प्स इन बीइंग पॉजिटिव और मेकिंग समवन पॉजिटिव. NLP अभी कुछ समय से ही ये कंसेप्ट आया है. NLP कोच बनने से पहले मुझे नहीं पता था, और मुझे ये चीज तब पता चली कि जब मैं किसी काउंसलर से बात करती हूँ तो ही टेक्स अ लॉट ऑफ सेशंस, और उसके बाद वो काउंसलिंग कर करके भी उस बंदे के अंदर वो चेंज नहीं आता. लेकिन एक NLP जो है एक ऐसी टेक्निक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, तो ये सीधा हमारे माइंड के पैटर्न्स के ऊपर काम करती है और वहां से वो शिफ्ट लेकर आती है, वहां से वो चेंज लेकर आती है. यानी हमारी लाइफ के अंदर जो पॉजिटिव चेंज आता है वो हमारे माइंड के लेवल पे वो काम करती है. यानी वो सरफेस स्ट्रक्चर पे काम नहीं करती है, वो हमारे डीप स्ट्रक्चर में काम करके हमारे अंदर एक पॉजिटिव बदलाव लाने में हेल्प करती है. जैसे कि मान लो कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या मेरा कोई अल्सर है, तो मैं सुपरफिशियली उसको ऊपर इलाज करती रहूं तो मेरे ख्याल से वो एक परमानेंट इलाज नहीं होगा. लेकिन जब मैं डीप स्ट्रक्चर में जाके उसका इलाज करती हूँ तो वो जो बीमारी है वो पूरी तरीके से रूट आउट हो जाती है. तो NLP ने हेल्प करी मलिक जी, जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, अपनी एक लाइफ की एक बिग पिक्चर को बनाने के लिए, अपने आउटकम को अचीव करने के लिए, अपनी बैड मेमोरीज को खत्म करने के लिए, अपनी इमोशनल फ्रीडम को वापस गेन करने के लिए. इन सब चीजों के अंदर जो NLP है उसने बहुत हेल्प करी है. और दूसरी ये कि NLP पढ़ने के बाद हमें ये चीज समझ आ जाती है कि हर आदमी की यहाँ पे उसका नक्शा अलग है, और हमें किसी को भी गलत करार करने का, जैसे अब हम लोग कह रहे हैं कि वाई से ये नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव हूँ, वो नेगेटिव है. NLP पढ़ने के बाद हमें ये चीज समझ आ जाती है कि दुनिया के अंदर कोई नेगेटिव ही नहीं है. उसने इस दुनिया को कैसे परसीव किया है, उसने वो बाहर के वातावरण को कैसे परसीव किया है, वैसे ही उसके यहाँ पे इमेज बन गई है. क्योंकि जो हमारा माइंड है ना मलिक जी, वो जो मेमोरीज हैं उनको मेमोरीज की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर नहीं करता है, वो इमेजेस के रूप में स्टोर करता है, जिसमें कुछ विजुअल्स होते हैं, कुछ ऑडियोज होती हैं और कुछ हमारे इमोशंस होते हैं, और वो सारे मिलके वो मेमोरी यहाँ पे स्टोर्ड है. और अगर मुझे अपनी जिंदगी के किसी भी बैड मोमेंट को हटाना है तो NLP में मैं उस पर्टिकुलर मेमोरी को जो है वो डिलीट कर सकती हूँ. तो इट इज अ वेरी गुड टेक्निक, और इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए. प्रत्येक आदमी को जो है NLP को सीखना चाहिए मेरे हिसाब से, अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए. तो इसमें कोई NLP की ऐसी टिप्स भी हैं जो बहुत इजीली प्रैक्टिस की जा सकती है? कोई एक दो टिप्स जो आप स्टूडेंट से शेयर करना चाहें? हाँ, NLP की एक छोटी सी टेक्निक है जो मैं शेयर कर सकती हूँ. 2 मिनट अगर लगेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? 2 मिनट. हाँ, तो मैं एक छोटी सी टेक्निक है जिसको हम कहते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT. और ये जो है जैसे कि हमें कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज हो जाती हैं, हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट उस पर्टिकुलर पोर्शन को दबाता है, उससे वो ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है और वो ब्लॉकेज खत्म हो जाती है. ऐसे ही एक एक्यूपंक्चर है जिसके अंदर वो पंचर करते हैं और उस ब्लॉकेज को ठीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है और फिजिकल लेवल पे हम ठीक हो जाते हैं. लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इमोशनल लेवल पे भी हमारी ब्लॉकेज होती है. जैसे कि किसी का कोई ब्रेकअप हो गया है, या किसी का कोई बहुत बड़ा फेलियर हो गया है, किसी को कुछ गुस्सा आता है, या जैसे किसी को COVID-19 में बहुत अपने करियर को लेकर बहुत अनसर्टेनिटी लग रही है. तो जितने भी इमोशनल इश्यूज हैं उनको सुलझाने के लिए ये छोटी सी टेक्निक है तो ये 2-3 मिनट की, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मिराकुलस हैं. तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहूंगी कि इसको आप इसको सीखें आज इस मंच के माध्यम से और उसको करके देखें.
तो जैसे हमारी बॉडी के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने अपनी हथेली को एक पॉइंट दबाया तो वो हार्ट को अफेक्ट करता है या किडनी को अफेक्ट करता है, ऐसे ही इमोशनल ब्लॉकेजेस को खत्म करने के भी कुछ पॉइंट्स हैं। एक बार मैं चश्मा उतार के आपको अच्छे से वो पॉइंट समझाती हूँ और चाहती हूँ कि मैं आप साथ साथ करें उसको। ठीक है। तो एक तो हमारा ये पॉइंट है, दिस पॉइंट, मैं पूरी एक्सरसाइज एक बार करके भी बताऊंगी। एक तो हमारा ये पॉइंट है जिसको आपको केवल टैप करना है, ऐसे ऐसे करके टैप करना है, बहुत जोर जोर से दबाना नहीं है, ओनली टैप करना है। एक तो ये पॉइंट है आईब्रोज के साथ वाला, एक ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, ये जो जहां पे मूंछ होती है, ये वाला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। और ये जो कॉलर बोन्स है ये छठा पॉइंट है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा और ये कॉलर बोन का छठा पॉइंट। और सातवां पॉइंट जो है, जब हम अपनी बाजू को ऊपर करते हैं तो इस जगह पे जब हम बाजू के नीचे हल्का सा दबाव देते हैं तो हमें थोड़ा सा दर्द होता है, एग्जैक्टली उस पॉइंट को हमने टैप करना है। तो ये सातवां पॉइंट हो गया। और आठवां और लास्ट पॉइंट है तालू, जहाँ पे हमारी नानियां दादियां हमें तेल लगाती। तो जिस इमोशनल ब्लॉकेज को आप अपने अंदर सफर कर रहे हैं उसको आपने एड्रेस करना है और इन पॉइंट्स को टैप करना है। जैसे आपको फियर है, फियर ऑफ अननोन आपको सता रहा है, तो आपको फियर को एड्रेस करना है। तो आप पहले यहाँ पे कहेंगे दिस फियर, 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 दिस फियर। तो ये 8 पॉइंट्स का एक राउंड बनता है, 3 राउंड्स आपने ये करने हैं और उसके बाद डेफिनेटली आपको इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। यही आपका कोई ब्रेकअप हो गया, मान लो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है और आप उस चीज से बाहर नहीं आ सकते हैं, तो भी आप इसको टैप करें कि आई वांट टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। आप उस सिचुएशन को एड्रेस करेंगे। इसी तरीके से आपको लगता है कि यूनिवर्स में इतनी अबंडेंस में चीजें हैं लेकिन वो आपको नहीं मिल रही और आप उस यूनिवर्स के साथ अलाइन होना चाहते हैं, तो आप एड्रेस करें, आई वांट टू बी अलाइन विद द यूनिवर्स, I want to be aligned with the universe. 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 3 सेट करने आपने इसको. बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया. So students have learned this technique and they will be benefited by it. तो अभी नीरू जी आपने बीच में कोविड-19 की बात की थी, तो वी कम ऑन दैट पार्ट आल्सो, एंड दैट इन दिस कोविड-19 सिचुएशन व्हाई दिस पर्सपेक्टिव थिंग हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर आवर स्टूडेंट्स. यस, बिल्कुल. कोविड-19 में अपने पर्सपेक्टिव के ऊपर क्या काम करना है, यही है ना आपका क्वेश्चन? मतलब पर्सपेक्टिव अब ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखना. बिल्कुल. देखो, जब बीमार होते हैं ना उस वक्त हमें ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत होती है. जब हम ठीक है तो हम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम 2 बार खाना भी नहीं खाते, इवन देन इट इज ओके. लेकिन जब बीमारी होती है तभी तो हम दवाई लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं और अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करते हैं. तो बिल्कुल ऐसे ही जो कोविड-19 की सिचुएशन आई हुई है, तो बच्चों को ये मैं कहती हूँ कि प्लीज आप इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, कि इस वक्त आप अपने आप से क्या कम्युनिकेट करते हैं, क्या भाषा यूज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल कि 2 बच्चे हैं, 2 IT प्रोफेशनल्स हैं और दोनों की जो जॉब है, दोनों को अभी कोविड-19 के अंदर फायर कर दिया गया. तो A और B 2 है. A क्या कम्युनिकेट कर रहा है अपने आप के साथ कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ, मेरा करियर खत्म हो गया है, मैंने अपनी इतनी एजुकेशन ली है, मैं रोड पे आ गया हूँ, मैं तो अब कुछ करने के लायक ही नहीं रहा. लेकिन जो बी है वो क्या कह रहा है कि हाँ, मुझे जॉब से फायर कर दिया गया है, एक बार तो मुझे भी ऐसे लगा था कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, लेकिन जो ये जॉब से मुझे फायर किया गया है, ये मुझे फायर नहीं किया गया, जॉब से केवल फायर किया गया है.
मेरी कैपेबिलिटीज मेरे पास ही हैं और आई विल मेक वन मोर एफर्ट, मैं करूंगा कोशिश, मैं इस टाइम को अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में लगाऊंगा। तो आप बताओ इस टाइम पे आगे प्रोग्रेस करने के या आगे उठने के चांसेस क्या किसके हैं? जो ए है जो अपने आप को बर्बाद ही कह रहा है, जो कह रहा है कि मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं तो जिंदगी को ही खत्म कर लूं, तो उस टाइम पे चाहते ना चाहते वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे रहा है और उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अपने आसपास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ भी जाएगी ना उसको देखेगा ही नहीं। लेकिन जो दूसरा बी है वो उस नेगेटिव सिचुएशन में भी अपने आप को एक होप दे रहा है कि हाँ सिचुएशन तो यही आ गई है कि हाँ, मेरे को भी फायर कर दिया गया है, मैं भी रोड पे आ गया हूँ, लेकिन आई विल मेक वन मोर एफर्ट, मैं इस टाइम को अपने आप को ग्रो करूंगा। और ये रिजेक्शन नहीं मिली है, ये सिचुएशन है, इट इज अ सिचुएशन, ये मुझे रिजेक्शन नहीं मिली, मैं गलत नहीं हूँ, सिचुएशन गलत है। तो अगर वो अपने माइंड को ऐसे प्रोग्राम कर रहा है तो डेफिनेटली कौन आगे बढ़ने वाला है, किसको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी या किसके लिए आगे का जो रास्ता है वो ज्यादा क्लियर है। और एक चीज और बताऊं मलिक जी की जब हम नेगेटिव होते हैं तो हम अपने आसपास वाले लोगों को भी ऐसी बातें कर रहे होते हैं ना, हाय मैं बर्बाद हो गया, तो लोग भी बार बार उसी कन्वर्सेशन को ले लेके आपको उन्हीं थॉट्स को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं, हाँ यार अब तेरा क्या होगा, अब तो नौकरी छूट गई, अब तो तेरे को लड़की नहीं मिलने वाली, तू तो बर्बाद हो गया। तो सो मेनी टाइम्स वही थॉट्स अंदर जा रहे हैं। लेकिन जो बी है जो हर बार अपने आप को एक पॉजिटिव कमांड दे रहा है, हर बार जब वो लोग उसको कहेंगे कि यार तू भी बर्बाद हो गया, तो वो हर बार अपने आप को क्या कह रहे हैं, नहीं अभी मेरे पास एक उम्मीद है। तो वो जो उम्मीद है वो उसको आगे लेके जाएगी। तो बच्चों को मैं यही कहना चाहती हूँ, ये फेज है अपने आप को दिखाने का। कई बार थ्योरी बहुत पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन प्रैक्टिकल का टाइम आता है, उस टाइम पे पता चलता है कि हमारा अंदर वर्थ क्या है। तो हम ये सोचें कि अभी तक जितनी भी हमने अच्छी चीजें पढ़ी हैं, सेल्फ लर्निंग की बातें पढ़ी हैं, उन सबको प्रूव करने का टाइम आया है। इस टाइम पे हमने बहुत पेशेंस प्रिजर्वेंस रखना है और इस टाइम को प्रॉपरली आप यूटिलाइज कीजिए। फिजिकल लेवल पे भी आप अपने आप को हेल्दी बनाने की कोशिश करें, इमोशनल फिटनेस के लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे रिलेशंस बनाएं। तो डेफिनेटली ये जो टाइम है ये एक कहते हैं ना कि बून का भी काम कर सकता है। और यही है हमारे पास, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे पास कोई और चारा भी नहीं। ठीक है, एंड कन्वर्टिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड डू। और अभी भी जैसे मान लीजिए हम ये वेबिनार कर रहे हैं, हम इतना फ्रूटफुल लेक्चर और टॉक आपसे सुन रहे हैं, ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है, अदरवाइज इट शुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। मलिक जी मैं तो आज यही बात कह रही थी कि जैसे कि आजकल लोग नलके लगा के पानी पिला रहे हैं या खाना पहुंचा रहे हैं, तो मैं ये कमेंट आपको देना चाह रही थी कि आपने भी जो ये नॉलेज का एक नलका लगा के रखा, हैंडपंप लगा के रखा है, कि देखो पानी तो बहुत लोग पी रहे हैं, एफर्ट आपने किया है, बट वी ऑल आर बीइंग बेनिफिटेड। मैं भी आप में से ही एक हूँ जिसको इस चीज का बेनिफिट मिल रहा है। पेड़ कोई लगाता है, फल जो है वो सब खा रहे हैं। तो ये क्रेडिट तो आपको जाना ही चाहिए कि देखो इस क्रूशियल टाइम में भी आपने कितना पॉजिटिव एक्शन लिया अपने बच्चों के लिए। और बच्चों को भी ये क्रेडिट देना चाहिए कि देखो हम अभी भी हमारे ऊपर हाथ और साथ है हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का। और इट इज वेरी बिग थिंग, भले ही हम डिस्टेंस है हमारे पास, बट क्योंकि हमारा सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, इसको यूज करके हम ऐसे लग रहा है कि हमारी कनेक्टिविटी है ही। मुझे भी लग रहा है कि मैं आपके ऑडिटोरियम में बैठी लेक्चर दे रही हूँ। Yes. So, as you told that self-affirmation is the key in today's pandemic situation. अगर self affirmation हम करते हैं तो we will be positive. तो नीरू जी, I think we have taken almost all the questions which we were having with us, but now we still have a section of this program. In this section, Facebook viewers question will be taken, and we have designed a mechanism for this. We are having some volunteers of this program, and those volunteers have collected the questions from Facebook page. So those will be coming on the stage and one by one, and they will be asking the questions which have come from Facebook viewers. So first of all, I invite Lisa. So Lisa will be asking questions. Good morning, ma'am. Good morning, sir.
हेलो लीजा, कैसी हैं आप? Ma'am, you say? Ma'am, here is a question from Facebook viewers, Lisha Mehta and Pradeep Gautam, which already addressed by you. But I have a question that you said that we are surrounded by positivity and negativity. It is a different thing, but we want to see positivity and negativity. So what do you think? This is the crisis time and we are feeling negative. So it is affecting to our future performance. So this is question. परफॉर्मेंस अफेक्ट तब करेगा जब आप इसको लेंगे। ये इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस चीज को कैसे लेते हैं। ये एक सिचुएशन आई हुई है आपके ऊपर, आप इस सिचुएशन को कैसे लेके आगे बढ़ते हैं ये आपके ऊपर है। समझ आई आपको बात? दिस इज ओनली अ सिचुएशन, बट आपने इस सिचुएशन में क्या एक्शंस लेने हैं, आपने क्या स्ट्रेटजीज प्लान करनी है, उन स्ट्रेटजीज के हिसाब से क्या एक्शंस लेने हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। और जिस तरह से आप एक्शंस लेंगे, जिस तरह से इस टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस होगा, वही आपको आगे लेकर जाने वाला है, बिल्कुल वैसे ही लेकर जाने वाला है। Thank you, ma'am. So I think question of Lisa has been addressed and other Facebook viewers also. So now I invite Nitya Chuk. Yeah. Yes, Nitya, you are audible and visible. Okay. Good morning, ma'am. हेलो नित्या, कैसी हैं? वेरी I'm fine. हाँ, आप बताएं। वेरी स्वीट फेस देखने को मिला आज मुझे। क्वेश्चन पूछिए। चलिए मैम, एक व्यूअर से क्वेश्चन है फ्रॉम भावना सैनी। She want to ask कि how can we stop overthinking? ओवरथिंकिंग तब हम करते हैं जब हम क्लियर नहीं है, अपने लिए क्लियर नहीं है। कई बार क्या होता है कि जैसे एक स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसको केमिस्ट्री के थॉट्स आने लग जाते हैं, फिर वो केमिस्ट्री उठाता है तो उसको मैथमेटिक्स के थॉट आने लग जाते हैं। यानी थॉट्स कंटिन्यूअसली, पढ़ाई के लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, तो वो थॉट्स आने लग जाते हैं। तो आप अपनी ओवरथिंकिंग को प्रिवेंट करने के लिए आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए और पेन डाउन कीजिए। अगर आप अपने दिनचर्या को पेन डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके माइंड को सिग्नल मिल जाता है कि अब मेरी चलने वाली नहीं है, अब इसी पैटर्न के हिसाब से ये पर्सन जो है वो काम करने वाला है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, हम बिल्कुल वेले होते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो घोड़े की तरह भागता है, हम ओवर थिंकिंग की तरफ जाते हैं। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो पास की तरफ बहुत ज्यादा आता है, और एक बार जब वो पास में चला जाता है फिर वो ट्रैप में फंस जाता है, फिर वहां से निकलना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। 80% तो हम अपने आप को पास्ट में ही रखते हैं और 15% जो है वो हम अपने आप को फ्यूचर में रखते हैं। तो केवल 5% जो है वो हम प्रेजेंट पे रहते हैं। इसीलिए हम आज प्रेजेंट मोमेंट को देखें। और जिसका भी क्वेश्चन है मैं उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उसके लिए यही मैसेज है कि ओवर थिंकिंग का सिर्फ यही इलाज है। देखो, पास्ट को आप बदल नहीं सकते हैं और फ्यूचर अनसर्टन है, तो आपके पास एक्शन करने के लिए केवल प्रेजेंट मोमेंट है। तो पूरा जी जान से, जदोजहद से आप पूरा फुल यूटिलाइज कीजिए इस प्रेजेंट मोमेंट को। और जब आप पूरी की तरह से अपने फुल कंसंट्रेशन को प्रेजेंट पे लगाएंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा थॉट्स आने वाले नहीं है। और अपना लक्ष्य सामने रखें, एक विजन बोर्ड बनाएं अपना। एज ए स्टूडेंट आप सबकी टेबल पे एक विजन बोर्ड होना चाहिए, एक आउटकम होना चाहिए, और वो सारी चीजें आपने पूरी करनी है। वो लक्ष्य आपको प्रेरित करता रहे, आगे बढ़ने के लिए बढ़ाता रहे। जब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता तभी मैं अपना फेसबुक पे सारा टाइम स्क्रॉल करती रहती हूँ या मैं इंस्टाग्राम पे जाती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कुछ है तो वो जो लक्ष्य है वो मुझे वहां पे साधे रखेगा और मैं गलत चीजों की तरफ जाऊंगी नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि आप अपने सपनों को बड़ा रखो या आप अपने सपनों को जीने की कोशिश करो, नहीं तो कोई और आपको हायर करके अपने सपने जीने की कोशिश करेगा। थैंक यू मैम। ठीक है नित्या, तो आई थिंक being in the present is the key to address this problem of overthinking. So now I invite Vikas Sharma. Vikas Sharma. Yes, Vikas. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Ma'am, there is a student from Facebook viewer, and her name is Twinkie, and her question is, how can I overcome with fake people?
कुछ Okay. आवाज की बबलिंग है, मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाई हूँ। दोबारा पूछो। her question is, how can I overcome with fake people? With हाउ कैन आई Fake ओवरकम people. fake Fake people. people. फेक पीपल? Yes, ma'am. एक्चुअली एज ए NLP ट्रेनर तो मैं आपको यही कहती हूँ कि आप डिसाइड मत कीजिए कि कौन फेक है कौन नहीं है। Yes. आप अपने लक्ष्य की तरफ ही ध्यान दें। जैसे कि एक एरोप्लेन होता है और आप एरोप्लेन पे जा रहे हैं और बाय चांस उसका जो फ्लाइट प्लान वाला कंप्यूटर है वो फेल हो जाता है, तो उस एरोप्लेन को पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ उतरना है। तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, वो ले दे के अपने आप को एक सेफ जगह पे लैंडिंग करेगा। लेकिन इतना पेट्रोल टैंक भरा होने के बावजूद भी और इतनी बड़ी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी उसने अपने आप को केवल एक सेफ जोन पे उतारा, क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर फ्लाइट प्लान नहीं था। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ये जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है, ये इन चीजों में फंसने की है ही नहीं कि नेगेटिव लोगों से कैसे बचना है या फेक लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आप पूरा का पूरा जो अपना फोकस है वो अपने लक्ष्य की तरफ दीजिए। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बुक बता रही थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके अंदर एक चीज ये भी बताई गई है कि जिंदगी के कुछ इनिशियल ईयर्स होते हैं करने के। अगर आज आप अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करेंगे और इन चीजों की तरफ लगाएंगे तो आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो चले जाएंगे। तो फेक पीपल हैं, लेट देम, उनकी फेकनेस उनके साथ ही रहने दीजिए। सिर्फ आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि उनकी नेगेटिव वेव्स जो है वो आपको अफेक्ट ना करें, और यही केवल जिंदगी का लक्ष्य है। बाद में आप कंप्लेन ना करें कि वो जो टाइम था वो मैंने इतना ओवर थिंकिंग में और इतना नेगेटिविटी में बिता दिया, क्योंकि यही टाइम जो है ये आपको करियर सेट करने का है। तो केवल फोकस फोकस फोकस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये मूल मंत्रास को आपको लेके चलना है। And we should not see those people as fake people. This is also फिटनेस का हमें पता भी नहीं है ना मालिक जी कि हम जिसको फेक कह रहे हैं, मतलब वी आर नो बॉडी टू जज एनीवन। तो इस मंत्रा को तो मुझे धारण कर ही लेना है कि मेरी पीस ऑफ माइंड जो है वो सबसे बड़ी है। यानी द टॉप प्रायोरिटी ऑफ माई लाइफ इज माई हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, यही है। और इसको मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है किसी भी चीज से। ठीक है, जी। ठीक है विकास, थैंक यू. Okay, So sir, now thank you. Madhur Bansal will be coming on the stage. Vikas, you can make your video off. Yes, Madhur, please go ahead. First unmute yourself. Yes. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Ma'am, there is a viewer Rishabh Agarwal from our Facebook. उसका एक क्वेश्चन है जिसके बाद मैं भी अपना क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा। तो उसका क्वेश्चन ये था कि हाउ टू स्टार्ट, बिकॉज टेकिंग फर्स्ट स्टेप इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। हाउ टू स्टार्ट फर्स्ट स्टेप? जैसे मेरे को यस मैम, यानी पहला स्टेप लेना मुश्किल लगता है, उसके बाद तो जर्नी आसान हो जाती है, यही कहना चाह रहे हैं आप? और वो पहला स्टेप कैसे लें? Yes, yes. Yes, yes. बिकॉज दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेप फॉर अस। मतलब पहला स्टेप क्या हो, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में या जिंदगी की कोई भी इक्वेशन में पहला स्टेप भी जरूरी होता है, उसके बाद तो 99% हमारा काम हो ही जाता है। Yes. तो पहला पर्सपेक्टिव तो यही है कि आप अपनी जिंदगी का आउटकम क्या डिसाइड कर रहे हो। जैसे कि मलिक जी, हमारा एक व्हील ऑफ लाइफ होता है ना, जिसके अंदर मैं सेल्फ आती हूँ, मेरी फैमिली, मेरा करियर, मनी, मेरी करियर की ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो सब आती है। तो जब मैं आउटकम की बात करती हूँ तो मुझे उस पूरे व्हील ऑफ लाइफ को अपने साथ लेके जाना होता है। मैं उस चीज की बात नहीं कर रही हूँ कि मुझे केवल डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर ही बन रही हूँ। नो, डॉक्टर बनने के साथ साथ मुझे अपने परिवार को, अपनी बाकी सर्कमस्टांसेस को, अपनी हेल्थ को, उन सब चीजों को भी साथ ग्रो करना है। तो पहला स्टेप सिर्फ यही है कि आप पेन डाउन कीजिए। बार बार मैं सबको ये कहती हूँ कि एक पेन और एक जो कॉपी है वो आपके यहाँ के माइंड को, पैटर्न्स को चेंज करने के लिए बहुत बड़ा टूल है। जब आप कॉपी और पेंसिल लेके अपने मन की चीजों को यहाँ पे उतारते हैं तो आपको रास्ता जो है वो बड़ा क्लियर हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप
अपनी लाइफ का आउटकम डिसाइड कीजिए, क्योंकि अगर आउटकम नहीं है तो मुझे पता ही नहीं है ना मैं कितने एक्शंस ले रही हूँ। कभी मैं हेल्थ की तरफ जा रही हूँ, कभी मैं बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा रही हूँ, फिर कभी मैं कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुन लेती हूँ, कभी मैं कोई किताब के 2 पेज पढ़ देती हूँ। लेकिन क्या मेरे ये सारे एक्शंस मुझे मेरे आउटकम की तरफ ले भी जा रहे हैं या नहीं? तो सबसे पहले मुझे मंजिल दिखनी चाहिए, उसके बाद उस मंजिल की तरफ मुझे स्टेप लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अ विजन बोर्ड। आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, ये स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक एन आउटकम, उसके बाद उसकी स्ट्रेटजीज बनाइए कि आप क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे उसकी तरफ अपने आप को ले जाने के लिए। फिर उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करने के लिए आपको क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे, फिर उन एक्शंस को लेने में आपको बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको पेन डाउन करना है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ चीजों को मुझे फ्लेक्सिबल होकर छोड़ना पड़ेगा, कुछ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो कि मेरा वेट ज्यादा है और मुझे एक एक्शन लेना है कि मुझे अपना 5 kg वेट घटाना है। तो पहले तो मुझे बहुत ही माइंड को एक सिग्नल देना पड़ेगा कि मुझे कितना वेट घटाना है। अगर मैं ये कहूंगी कि मुझे वेट घटाना है तो मेरा माइंड तो 500 ग्राम को भी वेट घटाना ही समझेगा। तो मुझे पहले पेन डाउन करना है कि यस मुझे 5 किलो वेट घटाना है, और फिर डेट भी लिखनी है कितने टाइम में घटाना है। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 6 महीने में मेरे को अपना 5 किलो वेट घटाना है, मुझे ये लिखना है। उसके बाद फिर मुझे स्ट्रेटजीज बनानी है कि मुझे अपनी डाइट प्लान कैसे रखनी है, मुझे एक्सरसाइज क्या करनी है, मुझे लथार्जिक होके इतना टाइम यूट्यूब या फेसबुक पे नहीं बैठना है, मैंने अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। तो ये स्ट्रेटजीज लिखनी है। स्ट्रेटजीज के बाद मुझे एक्शन मोड में आना है कि मैंने 2 घंटे वॉक करनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कार्डियो कौन सी करनी है, स्ट्रेचिंग कौन सी करनी है। जब मैं सब कुछ करूंगी तो मेरी हड्डियों में दर्द भी होगा, मेरे स्प्रेन्स भी आएंगे। तो वो मेरे फेलियर्स मुझे फीडबैक्स दे रहे हैं, उनको फिर मैंने फ्लेक्सिबल होके उसमें प्लस या माइनस करने हैं, फिर अपनी जर्नी की तरफ वापस जाना है। 5 किलो वेट कम करना है 6 महीने के अंदर। तो इसी टेबल को आप अपनी लाइफ में किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। मान लो कि अगर आपके किसी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो इसमें भी आप अपना ये आउटकम डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इस पर्सन के साथ या मेरी मदर के साथ या मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशंस ठीक नहीं है, बट आई वांट वेरी गुड रिलेशनशिप्स। तो मुझे आउटकम बनाना है कि मेरे को 6 महीने में अपने रिश्तों पे काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज एन NLP ट्रेनर आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, अपना वेट कम करना है तो मैं जिम्मेवारी लूंगी ना कम करने की। ऐसे ही अपने पर्सपेक्टिव पे काम करना है तो मैं जिम्मेवारी ले रही हूँ। मैं लोगों की फेकनेस नहीं देख रही, मैं लोगों की नेगेटिविटी नहीं देख रही, मुझे काम करना है अपने पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो मेरा क्या आउटकम होगा, फिर मुझे क्या स्ट्रेटजीज बनानी है, मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी है, मुझे किस तरह के लोगों में रहना है, अपने माइंड को कैसे डीक्लटर करना है, कैसी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करनी है। दीज आर द स्ट्रेटजीज। लेकिन जब आप स्ट्रेटजीज को एक्शन में लाते हो तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको भी पेन डाउन करना है कि वो प्रॉब्लम्स मुझे क्यों आ रही हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो मुझे मेरे एक्शन में, मुझे अपने आउटकम की तरफ रोक रही हैं, उसको मैं पेन डाउन कर रही हूँ, उसके ऊपर काम कर रही हूँ। तो एक ही रास्ता है। इट इज नॉट कि आपने बस एक काले को कपड़े को फटाफट सफेद कर दिया, ऐसा नहीं होता है, या सफेद कपड़े को आपने बस चुटकियों में काला कर दिया, ऐसा नहीं होता है। एक हमें काम करना पड़ता है और उसके स्टेप्स होते हैं। राइट मैम। मैम इसमें एक मेरा सवाल ये था कि जैसे हम किसी ड्रीम के लिए जब जाते हैं तो हमने उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, थोड़ी सी आवाज तैयारी कर जोर ली, से बोलिए, लेकिन जब मेरे हम को ना किसी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। यस मधुर प्लीज री-आस्क। हाँ मैम मेरा सवाल ये था कि जैसे मैं अगर किसी ड्रीम की तरफ जा रहा हूँ अपने, तो उसके लिए मैंने अपना पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली, लेकिन जब मैं डोर को नॉक करने ही वाला होता हूँ तब कहीं ना कहीं मेरे अंदर आता है कि नहीं यार कुछ कमी है इस चीज में। और तभी मेरे को ये भी एहसास होता है कि अगर इस अपॉर्चुनिटी को मैंने अभी ग्रैब नहीं किया और बाद में फिर मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं, मुझे उसके बारे में पता नहीं है, तो उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए? देखो, आप अपने एम की तरफ जा रहे हो और उसके बाद आप अपने माइंड को एक नेगेटिव अफर्मेशन दे रहे हो कि मुझे ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा ही कह रहे हो आप? आपने नहीं मैं ये कह रहा हूँ हम्म, कि मैंने तैयारी कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं ये आता है कि यार इस चीज के लिए थोड़ी सी कमी रह गई है, मतलब तू कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, तेरी
तैयारी पूरी नहीं हुई है। थोड़ा मुझे fear ये है, पता है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी, some fear is there कि I lack something, तो whether I will be successful or not. देखो ये थॉट्स तो आते हैं ना मलिक जी, जब हम किसी भी चीज को हम लेकर जाते हैं तो ये चीज तो कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो हमें पॉजिटिव सिग्नल भी दे रहा है कि तू और तैयार हो, और तैयार हो, यानी अपने आप को उस लक्ष्य की तरफ जाने के लिए अपने आप को पूरा तैयार करना है, तो इट इज अ गुड साइन। ऐसा गलत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा माइंड हमें हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है, तो वो हमें ये सिग्नल दे रहा है कि तू और तैयारी कर, और तैयारी कर, तो इट इज अ वेरी गुड साइन। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली आपको ऐसे थॉट्स आते हैं, तैयारी करने के बाद भी आप ऐसे थॉट्स आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं आपका अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, अपनी तैयारी पे भरोसा रखें और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स दें कि यस, जो सक्सेस है वो तो मेरे को मिलने ही वाली है। या कई बार हम लोग ऐसे करते हैं ना, जब पेपर के लिए तैयारी जा रहे होते हैं, तो मैं हमेशा अपने आप को ये थॉट देती थी कि जो आउट ऑफ सिलेबस है ना, मतलब जो है वो आएगा ही नहीं, या जो मैंने नहीं किया है वो आने ही नहीं वाला है। तो इस तरीके से आप अपने आप को सिचुएशन के लिए पॉजिटिवली तैयार कीजिए, क्योंकि अगर आप दुविधा में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। राइट मैम, राइट मैम। Okay, Madhur, I think your question has been addressed. So Rahul Rathi is the last one. Rahul, you can make your video on. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon. हेलो राहुल, कैसे हो? I'm fine, ma'am. How are you, ma'am? बहुत अच्छी। Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, a person from Facebook viewer asked a question. His name is Aman Sial. That sometimes we are confused in choosing a field. Then, what should we do in this type of conditions? Sometimes we are confusing regarding our field, In choosing our field or in Yes, choosing ma'am. our goal. career wise। Field. देखो, हाँ, आपका पैशन क्या कहता है? कई बार क्या होता है कि हम लोग अपनी सराउंडिंग से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी जो हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास के लोग या हमारे फ्रेंड सर्कल है, हम उनसे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो दिल आत्मा है वो क्या कहता है, आप अपना पैशन ढूंढिए, और अगर आपका जो पैशन है वो प्रोफेशन में कन्वर्ट होने में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको वो एक सब्सटेंशियल इनकम दे सकता है, तो डेफिनेटली आप उसको बिना कंफ्यूजन के चूज कीजिए। कई बार क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी महत्वाकांक्षाएं हमारे ऊपर डालते हैं, तो उसमें हमें कंफ्यूजन आ जाती है, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो तो किसी और तरफ होता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें किसी और तरफ मोटिवेट कर रहे होते हैं। या कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे जो बाकी सारे फ्रेंड्स हैं वो पर्टिकुलरली एक फील्ड की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें प्लीज आप अपने दिल की आवाज सुनिए कि आपका दिल क्या कहता है, यानी ऐसी कौन सी चीज है जिसको करने में आप टाइम और स्पेस से बिल्कुल आउट हो जाते हो, यानी उस काम को जब आप करते हो तो आप इतनी तल्लीनता में डूब जाते हो कि आपको टाइम और स्पेस का पता ही नहीं चलता। और अगर आपका ये पैशन जो है ये प्रोफेशन में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि आप फर्दर उसको डेवलप करेंगे, लेकिन अगर वो चीज आपको रोजी रोटी देती है तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ जाइए, उसमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप तो फाइंड आउट योर ओन पैशन, उसके बाद फिर आप अपने आपका विजन डिसाइड कीजिए। So converting the passion into profession is the best thing which you have clarified. So Niruji, I think all the questions have been addressed, and it's more than 1 hour we are interacting, and we can extend this session to 2-3 hours more, because it's a very interesting topic, very beneficial topic. Yes. Yeah. So on behalf of Training and Placement Cell, Guru Jambeshwar University of Science and Technology, Hisar, I would like to express my heartiest thanks to you, Niruji, because you have very beautifully delivered all the thoughts, and you have made our students confident, and I think after your lecture they will be thinking in the positive direction and their perspective will be positive. So in the end, I would request you to give some concluding remarks. After this we will end the session. Your concluding remarks, please. सबसे पहले तो मैं आपको यही बात कहना चाहती हूँ कि आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखो,
क्योंकि अभी तक भगवान ने एक चीज बड़ी अच्छी रखी हुई है अपने पास कि उसने किसी भी आदमी की मेहनत को जाया नहीं होने दिया। तो कुछ भी सरकमस्टांसेस आते हैं वो मैटर नहीं करते हैं, सरकमस्टांसेस में आप कैसा रिस्पोंड करते हो ये बहुत मैटर करता है। और डोंट ब्लेम अदर्स, आप दूसरों को ब्लेम मत करो, आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करो, शुक्राना अदा करो, जो कुछ भी मिला है उसके लिए थैंकफुल हो आप लाइफ के अंदर, क्योंकि जब आप थैंकफुल होते हो तो यूनिवर्स आपको वैसी वैसी और अपॉर्चुनिटीज देता है ताकि आप थैंकफुल हो सको। तो शुक्राना अदा करें, क्रेडिट्स दें, और जिंदगी में आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाना, उन लोगों ने जिन्होंने आपकी लाइफ के अंदर चेंज किया है उनको मत भूलना, उनको क्रेडिट देना, उनको ड्यू रिगार्ड्स देना, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, और हमेशा अपने आप के साथ जो आपकी कम्युनिकेशन है वो पॉजिटिव रखना। एक मूल मंत्रा था टोनी रॉबिन्स का, उसने मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाया कि द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड यू। आपकी लाइफ है, केवल आपकी लाइफ है, और आपको पूरा अधिकार है इसको सुंदर बनाने का। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना सुंदर बनाते हैं, और आप बना सकते हैं। आई एम श्योर कि आप सब लोग कर सकते हैं, और यूथ के अंदर ये पावर है, कन्विक्शन है, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो मेहनत पे भरोसा रखें, सिर्फ और सिर्फ मेहनत, और अपना फोकस क्लियर रखें, और यू विल गेट द 100% desirable results in your life. So thank you, Neeruji. So dear students, this was today's session. We interacted with the motivational speaker Miss Neeru Asija ji, and I am hopeful that you have learned lot of things from today's session. And next week or next Friday we are going to conduct fourth next session, and that would be on the very important topic, how to give online interviews. So online interview skills, this is the new normal, and in this pandemic time most of the interviews are going to be online interviews. So this is going to be the next week's topic. So I appeal to all the Facebook viewers, the students of our university, to register on the link and be part of that webinar. So I'm thankful to all the Facebook viewers, all the students, all the volunteers for making this event, making this program successful. Thanks to all. Goodbye. Thank you.